they may on this urethra, and this can decrease the bladder empty. So here that may again increases the risk of UTI. The persons who are diabetic, so this diabetic person, they may have susceptible to this UTI. They may most probably suffer most of the time from this UTI. Then if the estrogen hormone become less, the estrogen hormone become less during menopause. So when there will be stoppage of menstruation will start. So that stage is called as menopause. And after menopause, the estrogen will become less. And because of this, there may be risk of UTI in after menopause. Okay? Then if uh, the person is in a lying position, means he may be paralytic or operative, post-operative person will be there. So that time we use catheter, and that catheter sometimes irritate, and due to which again the urinary tract infection may be increased. Okay, so these are some factors or causes of this urinary tract infection. Then what will be the symptoms? How can we will know that we are suffering from UTI? So the symptoms will depend on which part is infected. So definitely here, if the lower urinary tract infection will be there, means in the urethra or in the urinary bladder, then the symptoms will be burning by urination. Then there will be frequency of urination. बार बार हमको जो है तो यूरिन पास करने की इच्छा होती है, and we will pass only scanty amount of urine during that time. Scanty means कम, less amount में जो है तो हम यूरिन पास करेंगे. Then there may be bloody urine, blood भी हो सकता है. Yesterday we had already seen there should not be blood in the normal urine, but here there may be bloody urine, there may be cloudy urine. Means what do you mean by cloudy urine? So the transparency will become less. Then it may be look like a Coca-Cola color or tea color, or there may be strong odor. We had seen that we have ammoniac smell in our urine, but that if it will be strong odor or smell, it is the indication of urinary tract infection. There may be pain in the pelvic region, means lower abdomen में pain रहेगा, और there may be pain in the rectal region also. So rectal region में pain जो रहेगा, so that will be in a male, and pelvic region में pain अगर है, तो that will most probably found in the female. Okay, so this is about when we will suffer from lower tract UTI. If the upper tract will be there, if the upper urinary tract infection will be there, that means if the kidneys and the ureter that will get infected, so that time here the term which we used, that is called as sepsis. So sepsis that may cause due to low blood pressure, shock, or the death also. तो यहाँ पर sepsis से जो है, it is a danger condition, and by which the blood pressure will become low. The person may get shock. Shock means electric shock नहीं, person shock में जाएगा, और death भी हो सकता. So what will be the symptoms that time? There may be pain and tenderness in the back region, or
on the side of where the kidney is present. So tenderness means if we will try to touch, वहाँ पे touch करते हैं तो it will not allow to touch. Severe pain will be there. That condition is called as tenderness. Then we may have a chill, fever रहेगा because it's a infection. So definitely chill with fever. We may have a nausea and vomiting. जब भी हमको urinary ट्रैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मोस्ट प्रोबेबली नॉशिया और वॉमिटिंग होता ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमको दिखता है तो उसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है या उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को जो है तो उस समय में प्रॉपर केयरिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिनको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उनको हम लोगों ने कुछ टेस्ट करने के लिए जो है तो कहा जाता है एंड द मोस्ट प्रोबेबली द टेस्ट वी टेल देम एज अल्ट्रासोनोग्राफी। उसके बाद में जो है तो इंट्रावेनस पाइलोग्राम आईबीपी जिसे कहा जाता है, तो इंजेक्शन जो होता है डाई का वो जो है तो वो पूरे यूरिनरी ट्रैक में जाता है एंड दे सी इज देयर एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो डाई जो है जैसे जा रहा है पैसेज क्लियर है तो वो प्रॉपरली जाएगा एंड इफ देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन, सपोज कैंसर हो गया है या कोई और ग्रोथ है या दूसरा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो दैट टाइम इट विल शो। अगर स्टोन है तो वो वहां पे रुक जाएगा एंड इन दिस वे वी कैन रिमूव, मींस द प्रॉपर लोकेशन हमको पता चलेगी डेफिनेटली हम उसको रिमूव कर सकते हैं। देन सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी जो है तो ये हम ब्लैडर में ब्लैडर को एग्जामिन करने के लिए करते हैं, ठीक है। एक स्मॉल कैमरा जो है तो उसका यूज किया जाता है। डू यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग यू? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which treatment we should give here? यहाँ पर जो है तो हम मोस्ट प्रोबेबली एंटीबायोटिक्स जो है तो वो देते हैं। अगर अपर यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन है तो दैट टाइम आईवी के थ्रू इंट्रावेनस जो है तो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, ठीक है। अब कई बार जो है तो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्स ही नहीं किया जाता है तो फिर ऐसे समय में हम क्या करते हैं, यूरिन का कल्चरिंग करते हैं। तो यूरिन के कल्चरिंग से हमको जो है तो विच एंटीबायोटिक्स वी शुड यूज्ड, तो उससे हमको जो है एक इंफॉर्मेशन मिलती है एंड वी देन गिव दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन मेडिकल इसमें एक स्लोगन जो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम हमेशा जो है तो जैसे हम खुद अभी देख रहे हैं कि कोविड के लिए ट्रीटमेंट से ज्यादा हम प्रिवेंशन पे जो है तो फोकस करते हैं। इसीलिए हर डिसीजेस में जो है तो व्हेन वी स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर डिसीज तो दैट टाइम वी फोकस ऑन द प्रिवेंशन ओनली। तो व्हाट विल बी द प्रिवेंशन? प्रिवेंशन में हम क्या बोल सकते हैं? हमने जो बताया था एक रिस्क फैक्टर में हमने बताया था कि वाइपिंग फ्रॉम front to back after urination or having a bowel movement, that should be done. Okay. Drinking 6 to 8 glasses of water daily, that is useful to remove the harmful bacteria also from the urine. Drinking water after having sex, then we should not hold the urine for a more longer time. Then cleaning your vagina and the rectum daily, that is more important. Then taking shower instead of bathing. Then wearing comfortable underwears, tight
fabric traps moisture, so that will helpful. Then underpants should be of cottons. So if we will use it, so definitely we can prevent this urinary tract infection. Do you understood about the UTI? Yes, Yes, or no? ma'am. Okay. The next disease which is given, that is the renal stone. Renal stone means kidney stone, जिसको हम सिंपल इसमें पथरी कहते हैं. ये जो पथरी है, आज जैसे मेरे पास में भी जो है बहुत सारे पेशेंट्स की, मैडम मुझे पथरी की तकलीफ है, ऐसे हमको बताते हैं. तो इसमें एज कुछ भी मायने नहीं रखता. कुछ बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को भी पथरी हो जाती है, यंग वन को भी होती है, ओल्ड वन को भी होती है, वुमेन्स है, गर्ल्स है. तो यहाँ पर किडनी स्टोन्स जो है, just I want to tell you one myth is regarding this renal stone. Myth is यानी एक misbelief. तो पहले, आजकल तो खैर जो है तो स्टोनलेस राइस आता है ना, लेकिन पहले जो है, when I was younger, जब मैं छोटी थी, यंग थी, तो उस समय में बहुत स्टोन वाले वाइट स्टोन होते थे उसमें राइस में. तो जनरली हमने देखा है कि यानी बहुत चुनने के बाद भी कोई स्टोन तो रह जाता था राइस में, और वो जब खाया जाता था, माउथ में आता था, वो जैसे घर में कहा जाता था कि अरे अगर वो मेल है और उसके अगर बाइट में आ जाता है तो जल्दी से जाकर उसको थूक के आओ, अदरवाइज आपको पथरी. और फीमेल जो है, तो फीमेल को ऐसा जनरली इतना केयरलेस रखते थे, उसको केयरिंग नहीं किया जाता था. तो दिस इज द रॉन्ग वन, द रॉन्ग प्रोसेस. एक्चुअली मेल एंड फीमेल बोथ आर द सफरर फ्रॉम दिस renal stone. और दूसरी बात कि ऐसे से स्टोन नहीं होता है, ठीक है. तो ये कैसे होता है, तो लेट्स सी. यहाँ पर जो है तो किडनी स्टोन which is also called as lithiasis. Lithiasis means stone. तो renal lithiasis यानी किडनी स्टोन. ये small hard deposits होते हैं which will be present in the kidney. तो ये stones जो है, they may be made up of some minerals or due to some acidic salt. Acidic salt या mineral से बनते हैं. अगर हम टोमेटो ज्यादा करें तो ऑक्सैलिक एसिड है ना, बहुत ज्यादा दूध पीते हैं या दूध की बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं, तो कैल्शियम विल गेट डिपॉजिट इन आवर बॉडी. तो ये जो डिपोजिशन होता है उससे यहाँ पर जो है तो किडनी स्टोन होगा. तो किडनी स्टोन, इसके कॉजेस, इसके इफेक्ट्स जो है वो हमारे पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में देखने के लिए मिलेंगे, फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. तो यहाँ पर जो है कि जो किडनी स्टोन जब पास होता है, तो वो किडनी स्टोन पास होते वक्त वो बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होती है, ठीक है. और कई बार जो है तो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इट में गेट डैमेज व्हेन दिस स्टोन विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एडवाइस करते हैं, सो दैट इट विल गेट रिमूव ऑटोमेटिकली, ठीक है. लेकिन कई बार जो है तो सर्जरी करनी पड़ती है. तो ये सारी चीजों को जो है हमको अगर रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए. एक्चुअली सिम्टम्स जो है, so that symptoms indicate us something going wrong in the body, and for that we have to take a proper treatment. So what will be the symptoms? सबसे पहले तो symptoms जो है कि if we are suffering, हमारे इसमें जो है तो deposition हो गया. My voice is not clear.
हेलो, इज दिस Yes, क्लियर? ma'am. Now it is clear. ओके बेटा, तो हियर what will be the symptoms? So that symptoms maybe depend on कि exactly where the obstruction is there, है ना? किडनी स्टोन जो है तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, तो उस हिसाब से हमको जो है तो साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिले. बट मोस्ट प्रोबेबली in the renal stone we may get severe pain in the back region. बैक रीजन में बहुत ज्यादा पेन रहेगा, रिब्स के नीचे में, साइड में भी पेन रहेगा, बैक रीजन में सीवियर पेन विल बी देयर. और वो पेन जो है तो लोअर एब्डोमेन और ग्रॉन्स में भी रहेगा. ग्रॉन्स मीन द पार्ट फ्रॉम वेयर द एब्डोमेन एंड एंड द थाई स्टार्ट, जो हमारे जांग कहते हैं उसको हम ग्रॉन्स कहते हैं. तो ये जो ग्रॉन्स हैं यहाँ पर और लोअर एब्डोमेन में सीवियरली पेन रहेगा. यहाँ पर उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है, यानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, देन अगेन इंटेंसिटी विल इंक्रीज, अगेन slowly it will decrease, then we will either the person will not able to pass urine or there may be severe pain in the urination. There may be a pink color or red color or a brown color urine, cloudy urine हो सकता है, बहुत स्मेलिंग आएगा यूरिन में, नौशिया रहेगा, वॉमिटिंग रहेगी. Then continuously the person want to there may be urge for the urination, डिजायर रहेगी बार बार यूरिनेशन के लिए, यूरिनेटिंग मोर देन द यूजुअल. यानी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन पास ही ना हो, कई बार ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा वो यूरिन पास करेगा. देयर में भी फीवर, देयर में भी चिल में ठंडी लगेगी, तो अगर इन्फेक्शन है वहां पर तो इस तरह से हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि ये जो मूवमेंट होती है स्टोन की, तो उसकी वजह से हमारा जो पेन रहेगा तो दैट में गेट शिफ्ट और शिफ्टिंग पेन विल बी देयर, एंड अगेन द इंटेंसिटी विल आल्सो गेट means that may be less or more. अब यहाँ पर let's see what are the causes actually. तो किडनी स्टोन इसका जो है तो एक डेफिनेट सिंगल कॉज जो है वो नहीं रहता है. So many factors are there which will increase the risk of this kidney stone. So kidney stone they form when urine contain more crystals forming substances. जैसा कि मैंने जब बताया कि बहुत ज्यादा कोई दूध पीता है तो कैल्शियम रहेगा, बहुत ज्यादा टोमेटो या हरी सब्जियां खाता है which will contain oxalic acid, तो ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स रहेंगे. या फिर अगर हम बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करके रखते हैं यूरिन को तो यूरिक एसिड विल डिपॉजिट and due to which we may get suffer from kidney stone. या हम जो है तो बहुत कम फ्लूइड इनटेक करते हैं, वाटर इनटेक जो है तो हमारा कम है, तो अगेन दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर दैट. यहाँ पर एग्जैक्टली जो है तो किडनी स्टोन अलग अलग टाइप के रहेंगे कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, तो इस हिसाब से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन. तो फर्स्ट वन इज द कैल्शियम स्टोन. तो मोस्ट किडनी स्टोन दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के ही स्टोन होते हैं. ये कैल्शियम ऑक्सैलेट या कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म में हमको देखने के लिए मिलेंगे, एंड वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम द फूड. फूड से तो हमको ऑक्सैलेट मिलता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट ये जनरली फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स, नट्स, चॉकलेट्स जिसमें बहुत ज्यादा लेवल में ऑक्सैलेट प्रेजेंट होता है. ठीक है, लिवर में भी ऑक्सैलेट प्रोड्यूस होता है. कुछ डाइटरी फैक्टर जो है या बहुत ज्यादा हम विटामिन डी के टैबलेट्स खाते हैं, या फिर हमारे इंटेस्टिनल बाईपास सर्जरी हो चुकी है, या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है इससे भी जो है तो कैल्शियम या ऑक्सैलेट का कॉन्सेंट्रेशन जो है that will increase in the urine
and due to which the calcium phosphate or calcium oxalate stones will be. Okay. Second type is the struvite stone. अब ये स्टूवर्ट स्टोन जो है दे आर फॉर्म बाय ड्यू टू सम इन्फेक्शन, मींस यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है उससे वो फॉर्म होगा. तो दिस स्टोन्स दे विल ग्रो फास्टली, ये फास्टली हमारे बॉडी में ग्रो हो जाते हैं एंड दे विल शो सम सिम्टम्स जस्ट व्हिच वी हैड सी. देन नेक्स्ट वन इज द यूरिक एसिड. तो अगर हम बहुत ज्यादा प्रोटीन की चीजें खाते हैं तो उससे हमको यूरिक एसिड हमारे बॉडी में ज्यादा फॉर्म होगा. अब यूरिक एसिड जो है तो दैट इज एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द यूरिन, लेकिन हम ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं तो उस समय में ये जो है हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो जॉइंट्स है उसमें जाके डिपॉजिट होता है. तो हमारे जो टोज है और हमारे ये जो फिंगर्स की ये जो फैलेंजियल जॉइंट्स जो है तो यहाँ पर डिपॉजिट होता है. मेरे पास में जैसे पेशेंट्स आते हैं तो उनके ये जो मोस्टली मैंने देखा है कि इन लोगों के जो मिडल फिंगर और ये जो है तो ये ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं. they just not able to move their hands, they not able to hold anything, कुछ भी पकड़ नहीं पाते हैं. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो गया है. ये जो अपने जॉइंट्स की मूवमेंट से इसमें रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं एंड दैट इज ड्यू टू यूरिक एसिड डिपोजिशन. तो ये यूरिक एसिड डिपोजिशन जब हमारे किडनी में होगा तो दैट विल लीड्स टू यूरिक एसिड. The next is cystine stone. अब cystine stone जो है तो ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है. तो इसमें अगर बहुत ज्यादा जो है तो अमाइनो एसिड्स जो है तो वो अगर एक्सक्रीट होता है तो दैट विल लीड्स टू सिस्टीन स्टोन. ठीक है, अगर वो अमाइनो एसिड ज्यादा एक्सक्रीट करेगा तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिस्टीन्यूरिया. और ये सिस्टीन्यूरिया से सिस्टीन स्टोन जो है तो वो होता है. देन देयर आर सम अदर stones also, but these 4 types of stones we most probably see in our daily life. Okay, so here there are some risk factors regarding this kidney stone. So what are that risk factor which will lead to the kidney stone? किडनी स्टोन हो सकता है. ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स है? तो सबसे फर्स्ट जो है फैमिली हिस्ट्री. तो अगर हमारे फैमिली में किसी को किडनी स्टोन है तो हमें होने के चांसेस होते ही है. सेकंड इज आफ्टर 40 years the chances will be more. Third, the male are more sufferer than the female in this kidney stone. Then dehydration, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि if we are not drinking enough water, so there may be risk of kidney stone. Then dietary errors, if we are taking more proteinous food. कुछ लोगों को जो है तो बहुत ज्यादा जो है तो वो कॉन्शियस होते हैं, अरे बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, यू आर गेटिंग सो मच प्रोटीन्स फ्रॉम दैट, बट दैट प्रोटीन यानी जो बहुत ज्यादा लिया जाएगा तो वो हमेशा ही हार्मफुल रहेगा. तो दैट विल लीड्स टू यूरिक एसिड स्टोन. या फिर बहुत ज्यादा अगर सॉल्ट खाते हैं, सॉल्ट कुछ लोगों को आदत होती है कि अच्छा खासा नमक यानी हमारे सब्जी में होने के बाद भी ऊपर से नमक लेते हैं, तो दैट विल बी ऑलवेज हार्मफुल, दैट विल डैमेज योर किडनी. ठीक है. बिसाइड दिस शुगर इनटेक, बहुत ज्यादा अगर मीठा खाओगे तो दैट विल आल्सो लीड्स टू किडनी स्टोन. ओके. तो इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर कोई पर्सन जो है तो बहुत ज्यादा ओबेस्ड है, यानी बहुत ज्यादा मोटा है, उसकी जो वेस्ट है उसका साइज बहुत ज्यादा है और उसका कंटिन्यूअसली वेट गेन हो रहा है, तो एक उसमें जो है तो रिस्क रहेगी किडनी स्टोन होने की.
उसके बाद में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर सर्जरी हुई है, यानी अगर हमारे गैस्ट्रिक स्टमक जो है तो बाईपास सर्जरी हुई है, या फिर वी आर सफरिंग फ्रॉम द inflammatory bowel disease or some chronic diarrhea is there, so that may leads to uh, effect of absorption of calcium and sugar and water, and because of it there may be chances of kidney stone. इसके अलावा जो है तो there are some medical conditions which will lead to kidney stone, that is the renal tubule acidosis या cystinuria or hyperparathyroidism or medication sorry continuously medications, कुछ लोग जो है तो पेन किलर ज्यादा खाते हैं, so that may leads to, again, if we are suffering from continuously urinary tract infection, so these all are some risk factors which will lead to kidney stone. So what will be the treatment? The treatment will be surgery, है ना? So we have to remove it, but as we are not changing our diet and all that, so definitely यहाँ पे क्या हो जाएगा, there will be deposition of again and again that calcium or phosphate, they get deposit
due to network problem, I was discontinued. Okay. Now let's see again some diseases which are related with some nervous system as well as which are related with the skin. Tomorrow we will see about the structure and the functions of the skin. Okay. So here the first disease which we are going to discuss today, that is the motion sickness. Have you heard about the motion sickness? Yes. Have you heard about the motion sickness? So motion sickness is nothing but the unpleasant combination of symptoms. Means there may be dizziness, there may be nausea and vomiting, and that can be occur when we are traveling. Maybe traveling in the bus, maybe traveling in the train, maybe traveling in the plane or in a car. जनरली मैंने देखा है कि मोशन सिकनेस जो है तो ये टू व्हीलर पे नहीं होता. तो मेरे पास में एक स्टूडेंट आती थी तो वो कभी कार में नहीं बैठती थी या बस में नहीं बैठेगी. तो अगर उस और जिसकी वजह से वो कहीं जाती भी नहीं थी और अगर जाना है आसपास तो वो सिर्फ टू व्हीलर पे जाती. जब वो मेरे पास आई तो फिर मैंने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है. तो उसने फिर ये सारी चीजें जब बताई तो मैंने उनको बताया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम मोशन सिकनेस. I had started to give a proper treatment and now she can travel in a bus also, in a train also, na everything. So sometimes we may get suffer from travel sickness. और बहुत बड़ा अगर हम समुंदर अगर देखते हैं उससे भी कुछ लोगों को जो है तो सी सिकनेस होता है या कार सिकनेस तो मैंने बता ही दिया. अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं प्लेन में तो एयर सिकनेस होता है. ये सभी जो है ये मोशन सिकनेस में ही आए. या फिर हाइट, अगर कुछ लोग जो है तो थर्ड फोर्थ फ्लोर के बाद में अगर जैसे हाइट ज्यादा है तो उससे भी उनको जो है सिकनेस होता है. ठीक है. What will be the symptoms of this motion sickness? So there will be pale skin. हमारी स्किन जो है तो एकदम पेल होने लगती है. कोल्ड स्वेटिंग होता है, शरीर ठंडा पड़ना जिसे कहा जाता है. डिजीनेस विल बी देयर. एकदम से जो है तो हम लोगों को लूज लगता है. सलाइवा सिक्रीशन इंक्रीज्ड होने लगता है and we start to nauseated and vomiting will be there. और कुछ लोगों में जो है तो और हमको सिम्टम्स सिवियरिटी अगर ज्यादा है तो दैट टाइम देयर मे बी shallow breathing, like that the person start to take breathing. Then headache will be there, drowsiness will be there, बेहोश होता है. ठीक है. and there may be extreme tiredness, उसको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है. मोस्ट ऑफ द केसेस में सिम्टम्स जो है तो ये जैसे हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली होने लगते हैं और उससे फिर प्रॉब्लम्स भी जो है तो क्रिएट हो सकता है. यहाँ मोशन सिकनेस में अगर कोई है तो और वो वुमन जो है तो प्रेग्नेंट या फिर शी इज इन मेंस्ट्रुअल पीरियड तो उस समय में उसको ज्यादा तकलीफ होते हुए दिखाई देती है. ठीक है. ये कुछ जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं 3 to 12 years स्टूडेंट्स जो है या चिल्ड्रंस जो है they get more sufferer from this motion sickness. तो यहाँ पर एक बार जब
वो अपने टीनेजर एज में आ जाते हैं तो दैट गेट रिड्यूसेस, वो जो है वो कंडीशन निकल जाती है, लेकिन कुछ लोगों में वो वैसे के वैसे ही रह जाती है, परसिस्ट रह जाती है। तो यहाँ पर मेडिकल एडवाइस जो है मोशन सिकनेस के लिए, जो सिम्टम्स कंटिन्यू होते हैं, अगर वो ट्रैवलिंग करता है और वो उसको अगर कंटिन्यू सिम्टम्स है तो सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं कि वो ट्रैवलिंग करना रोक दे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये मोशन सिकनेस जो है तो उसको ईयर इन्फेक्शन अगर होगा तो उस इंटरनल ईयर में अगर इन्फेक्शन है, इनर ईयर में, तो उससे भी कई बार इस तरह से मोशन सिकनेस हो सकता है। तो हम पहले जो है तो उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये मोशन सिकनेस क्यों होता है। तो या कुछ लोगों को जैसे राइड्स पे बैठने के बाद भी मोशन सिकनेस होता है। जब अपन डिज्नीलैंड और ये सब जब जाते हैं और ये राइड्स पे बैठते हैं तो उससे भी हमको डर लगता है, या 3D फिल्म देखते हैं उससे भी बहुत ज्यादा डर लगता है, या कई बार कंप्यूटर गेम्स जो है तो उसमें भी मोशन सिकनेस देखते हैं। तो मोशन सिकनेस जो है ये या तो हमारे आईज से रिलेटेड कई बार हो सकता है, या हमारे इंटरनल ईयर्स से जो है तो वो रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ईयर है हमारे बॉडी को बैलेंस रखने के लिए हेल्पफुल होता है, इंटरनल। ठीक है, वैसे ही जो है तो जो लोगों के ब्रेन में डर सा बैठा हुआ होता है किसी पर्टिकुलर चीज का, तो डेफिनेटली उनमें जो है ये मोशन सिकनेस होगा। या फिर यहाँ पर जो है जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जिसमें नर्व्स का नेटवर्क होता है, चैनल होता है, और वो जो है तो हमारे इक्विलिब्रियम जो है बॉडी का मेंटेन करता है, उसमें अगर इम्बैलेंसिंग हो तो उससे भी हमको मोशन सिकनेस होता है। यहाँ पर जो है तो कई बार मोशन सिकनेस जो है तो माइग्रेन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, जैसे माइग्रेन अगर है तो उसमें भी हमको डिजीनेस, हेडेक, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, तो माइग्रेन से रिलेटेड हो सकता है। या फिर यहाँ पर जो है तो अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी हम लोगों को जो है तो मोशन सिकनेस देखने, तो हमको हम कैसे उसको ट्रीटमेंट क्या दें। तो माइल्ड सिम्टम्स मोशन सिकनेस के जो है तो हम कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे आइज को एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करना। जनरली हम ट्रीज वगैरह जो रहते हैं, ग्रीनरी जो रहते हैं, तो उसकी तरफ फोकस करने के लिए कहा जाता है। जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो म्यूजिक सुनो, तो ये सारी चीजें जो है तो हम उनका माइंड जो है तो डाइवर्ट करने के लिए बताते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है तो हम क्या बताएंगे, तो अगर पॉसिबल है यहाँ पर जो है केबिन या सीट जो है वो मिडल की लेना, सामने या पीछे की ना लेते हुए। जैसे अगर हम बोट में भी बैठे हैं तो मिडल सीट पे बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं तो मिडल सीट पे बैठे, तो इससे लेस मूवमेंट होगी ना, मूवमेंट लेस होगी तो डेफिनेटली या फिर हम पिलो या हेडरेस्ट जो है तो उसका यूज करेंगे, तो इस तरह से अगर हम अपना हेड फिक्स करके रखते हैं तो देन द सिवियरिटी विल गेट रिड्यूस। ठीक है, अब स्टेबल ऑब्जेक्ट्स जो है उसी को देखना, जैसे कोई हॉरिजॉन है उसी की तरफ फोकस करना, या फिर कुछ बुक पढ़ना या गेम्स खेलना, ताकि हमारी जो सिवियरिटी रहे सिम्टम्स की वो लेस हो जाए। या फिर आंखें बंद करके ऐसा जो है तो पड़े रहना, रेस्टिंग पोजीशन में रहना।
So that will again reduce the motion sickness. फ्रेश एयर इनहेल करना, विंडोज ओपन करना, फ्रेश एयर जो है तो उसको इनहेल करना, जिससे हमारा ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए, ऑक्सीजन लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी. रिलैक्स रहना, म्यूजिक सुनना, एक लॉन्ग ऐसे ब्रीदिंग करते रहना, मेंटल कुछ एक्टिविटी करना, जैसे काउंटिंग बैकवर्ड ऑफ 100, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, ऐसे रिवर्स काउंटिंग करते रहना. तो इससे क्या होगा, हमारा माइंड जो है तो वो डाइवर्ट हो जाएगा. उसको कूल रखना, काम रखना. तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, we can avoid the motion sickness. हम motion sickness से जो है तो अवॉइड कर सकते हैं. और खुद को जो है हमेशा हाइड्रेटेड रखना. तो कोल्ड ड्रिंक, नॉट कोल्ड ड्रिंक, जो फ्रूट जूसेस हैं या वाटर जो है, तो यू शुड टेक दैट कंटिन्यूअसली so that you will prevent from these motion sickness. Do you understood? Yes, do you understood or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes or no? Okay. So, beta, tomorrow I will take structure and function of skin, and then we will discuss about the diseases which are related with the skin. And most common diseases are given in your syllabus, and that are the acne, means pimples, dandruff, जिससे अभी हम सफर होते हैं, burn. So these are some common diseases which are related with this. We will discuss this tomorrow. Okay. So firstly, I will tell you about the structure. तो पहले ही मैं draw करके रख दूंगी structure जो है skin का, so that will be easy for you to explain. ठीक है? To understand. Sorry. Is it okay? So tomorrow we will see, because I am having some network problem. I have taken hotspot. Okay. Thank you. Listen and add me in your group so that I will send you notes.